ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے۔ میں آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات، آسمانی باپ کے بارے میں بائبل مقدس میں سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ دنیاوی باپ کی بات نہیں ہو رہی، آگے چل کر ہم زمینی باپ کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ یہاں آسمانی باپ کا ذکر ہے، تو آسمانی باپ کے بارے میں یوحنا رسول یہ کہتا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے ہیں۔ یہ باپ کی محبت ہے کہ ہم آسمانی باپ کے فرزند ہیں۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں سے چنا، اس دنیا میں سے ہمیں نکالا اور ہمیں فرزندیت کا حق بخشا۔ اب کلام یہ بتاتا ہے ہم فرزند ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن یہ تو پہلی خدا نے ہم سے محبت کی ہے کہ ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ خدا کی محبت کا معیار کیسا ہے، جس محبت سے اس نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے۔ لامحدود محبت خداوند نے ہم سے کی ہے، ان لمیٹڈ، اور دوسرا انکنڈیشنل محبت کی، بغیر کسی شرط کے۔ اس نے کلام میں لکھا ہے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے فرزند بنا لیا۔ یہ خدا نے فرزند بناتے ہوئے، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہوئے کوئی شرط نہیں ہمارے سامنے رکھی، بغیر کسی شرط کے، انکنڈیشنل اس نے ہم سے محبت کی ہے، اور پھر فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ محبت کی ہے، چند دنوں کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ عرصے کے لیے پیار محبت سے رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ باپ کی محبت، کوئی بھی باپ ہے، اس کی محبت ہمیشہ ہے، عارضی نہیں ہے، ٹمپریری نہیں ہے، فار ایور ہے۔ اور اس لیے خداوند نے فار ایور ہمارے ساتھ محبت کی ہے۔ اور ایک بائبل میں نے پڑھا، وہاں لکھا تھا، یہ مختلف بائبلوں کے ترجمے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، وہاں لکھا تھا ویری مچ، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ اور ایک میں لکھا تھا سو گریٹ لو، عظیم محبت اس نے ہم سے کی ہے، یونیک، لاسانی اس نے محبت ہم سے کی ہے۔ یہ خدا کی محبت کا معیار ہے ہمارے ساتھ، لامحدود، انکنڈیشنل، ویری مچ، فار ایور، انکنڈیشنل محبت، ان ایکول محبت۔ یہ بھی ایک بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس نے ہم سے کی ہے۔ یہ آسمانی باپ کی محبت کا معیار ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خدا نے جو عظیم، لاسانی، یکتا، یونیک، بے مثال، ان لمیٹڈ محبت ہمارے ساتھ جو کی، اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ خدا کی آسمانی باپ کی محبت سے پہلے ہم کیا تھے؟ یعقوب کا خط، اس کا 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے محبت رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔
हम दुनियादारी में जिंदगी गुजारने वाले, गुनाह में खेलने वाले, अबलीस के हाथों जुल्म उठाने वाले, उसकी मर्जी को पूरा करने वाले अपने कामों के सबब से खुदा के दुश्मन थे। इसके बावजूद उसने हमसे मोहब्बत की, हमारा बाप बन गया। इफिसियों 2 बाब की 1 और 3 आयत में लिखा हुआ है, हम कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। ये हमारी हालत थी। खुदा का बेटा बेटी बनने से पहले हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे और तबाही तौर पर गजब के फर्जंद थे। कामों के सबब से, गुनाहों के सबब से कुदरती तौर पर हम गजब के फर्जंद थे। फिर भी उसने हमें बचाया अपने फजल से, अपने तरस से, अपनी लामहदूद मोहब्बत से अपने फर्जंद बना लिया। 2 कुरिन्थियों के 1 बाब की 12वीं आयत में 12वें बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है, हम गूंगे बुतों के पीछे भागने वाले थे। बुत परस्त लोग, जिंदा खुदा से नावाकिफ लोग, आसमानी बाप को ना जानने वाले, गूंगे बुतों के पीछे भागने वाले, जो जुबान मुंह रखते हैं, कान रखते हैं, लेकिन सुनते नहीं, बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, हमारी सुनते नहीं, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। हम उन बुतों के पीछे भागने वाले थे, लेकिन फिर भी आसमानी बाप ने हमसे मोहब्बत की, हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, बेटे, जब मैं बेटे और बेटियां लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इंग्लिश और उर्दू में सिर्फ बेटे फर्जंद का जिक्र आया है, यूनानी में बेटे और बेटियां हैं, दोनों लफ्ज़ हैं। और इसलिए कलाम में लिखा है खुदा ने हमें अपने फर्जंद बनाया। तो मैंने आपको बताया कि खुदा के बेटे बनने, बेटियां बनने से पहले हम अपने कामों के सबब से, गुनाहों के सबब से खुदा के दुश्मन थे, क्योंकि हमारी दोस्ती दुनिया के साथ थी। गुनाहों के सबब से, कसूरों के सबब से मुर्दा थे, तबाही तौर पर गजब के फर्जंद थे, गूंगे बुतों के पीछे भागने वाले थे। लेकिन खुदा ने 1 कुरिन्थियों 1 बाब की 28वीं आयत में लिखा हुआ है, हम कमीनों को, हकीरों को, रद्द किए हुओं को, बेवजूदों को खुदा ने चुन लिया। बेवजूद लोगों का, जिनका दुनिया में कोई शुमार ही नहीं, दुनिया में हमारी कोई, हम किसी गिनती में ही नहीं थे, हम इस लायक ही नहीं थे, इस काबिल ही नहीं थे कि खुदा के फर्जंद बन जाते। लेकिन ये उसकी शफकत है, क्योंकि कलाम में लिखा वो शफकत करना पसंद करता है। उसने अपनी शफकत के सबब से, अपनी मोहब्बत के सबब से हमें अपने फर्जंद बना लिया। और ये भी कलाम में लिखा है रोमियो 5वें बाब की 8वीं आयत में, खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं ज़ाहिर की, जब हम गुनहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए। ये आसमानी बाप है, ये आसमानी बाप है जिसने हमें दुनिया में से निकाला, दुनिया में से चुना, दुनिया में से ढूंढा और हमें फर्जंदियत का हक बख्शा। दुनिया में एक ही मजहब है, मसीहत, जो लोग आसमानी बाप को, यहोवा को, बहरो भर के खालिक और मालिक को बाप कहकर पुकारते हैं। मैं यहां एक मिसाल देना चाहता हूं।
शेख बल्कीस की। वाकंड से वो एक मेजर की बीवी थी, उसका बेटा था, करीबल मर्ग था, तो वो हॉस्पिटल में, आर्मी के हॉस्पिटल में दाखिल था। तो वो करीबल मर्ग था। तो इंग्लिश डॉक्टर थी, उसको वो कहने लगी, डॉक्टर मेरा बेटा मर रहा है, उसको कुछ करो। तो उसने उसको कहा, बल्कीस आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकार, आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकार। वो कहने लगी, मैंने खुदावंद को बाप कहने की जुर्रत की, मैंने खुदावंद को बाप कहने की जुर्रत की। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, हमें जुर्रत नहीं करनी पड़ती। हमें खुदा की मोहब्बत के सबब से बड़ी आजादी से हम आसमानी खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, फर्जंद बनाया है। यह है हमारा आसमानी बाप, जो आज हम फादर डे मना रहे हैं। अब दूसरी बात, ये आसमानी बाप है, ज़मीनी बाप। ज़मीनी बाप के बारे में हम देखते हैं, ज़मीनी बाप की मोहब्बत क्या है, या उसकी मोहब्बत का म्यार क्या है। ज़मीनी बाप की, जब दाऊद के खिलाफ, दाऊद बादशाह के खिलाफ उसके बेटे अबीसलूम ने बगावत कर दी और वो अपनी बादशाही को छोड़कर दूसरी जगह पे चला गया, और उसने अपनी लौंडियों को अपने घर में एक खैमे में ऊपर छोड़कर चला गया। उसकी फौज के लोग, जर्नल उसके साथ थे, बहुत सारे लोग उसके साथ गए। अब अबीसलूम और उसके लोग जंग के लिए, दाऊद के साथ जंग करने के लिए आ गए, और दाऊद ने उसके लोग जो थे जंग के लिए जब भेजे, तो उसने अपने जर्नलों को ये कहा, योआब, अबीशे और इत्ती को ये कहा, उस नौजवान का ख्याल रखना, अबीसलूम नौजवान का ख्याल रखना। लेकिन एक जगह पे ऐसा वक्त आया कि वो अपने खच्चर पर जा रहा था, भाग रहा था अबीसलूम, उसके इतने ज्यादा बाल थे कि वो एक दरख्त के साथ, बलूत के दरख्त के साथ उसके बाल फंस गए, और खच्चर जो था उसके नीचे से निकल गया और वो लटका रह गया। एक आदमी ने योआब को बताया कि अबीसलूम वहां लटका हुआ है, और योआब ने जाकर उसको 3 तीर मारे और वो मर गया। और जब ये इतला दाऊद को मिली, तो दाऊद ने फिर अपने बेटे के बारे में क्या कहा। उस वक्त जमीनी बाप बेटे की बगावत को, बेटे की नाफरमानी को भूल गया और कहने लगा, इतना कलाम में लिखा है, 2 शमूएल 18वें बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, तब बादशाह बेचैन हो गया, तब बादशाह बेचैन हो गया और रोता हुआ चला, और चिल्लाते हुए यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरी जगह पर मर जाता, काश मैं तेरे लिए मर जाता। वो अपने बाप होने के रिश्ते की वजह से सब कुछ भूल गया है कि उसने मेरे पूरे खानदान को खत्म करना चाहा, मेरी इज्जत शोहरत को खत्म करना चाहा, मेरी लौंडियों को बेहुरमत किया, मेरी बादशाहत को छीनना चाहा, मेरा दुश्मन बन गया।
इन सारी बातों को भूल कर रो रहा है, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरी जगह पर मर जाता। ये है ज़मीनी बाप। हम सब अपने बच्चों की तकलीफ़ को, दुखों को कभी नहीं देख सकते, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे दुख उठाएं, क्योंकि बाप का रिश्ता ही दुनिया में अजीम है, अनोखा है, निराला है, यकता है, यूनिक है, बेमिसाल, बेनज़ीर है। बाप के रिश्ते की मानद दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। एक दफ़ा मैंने अपने बेटे को कहा, बाप का रिश्ता बहुत कमज़ोर रिश्ता है। बाप सारे मामलात में अपने बच्चों के लिए कमज़ोर पड़ जाता है, बच्चों का साथ देता है, उनकी गलतियों ख़ताओं को भूल जाता है। ये बाप का रिश्ता है। 2015 की बात है, मैं यहाँ था। उन दिनों में शाम में बहुत ज़ोरों पर जंग थी और शामी लोग सारे जर्मनी जा रहे थे, बजरिया समंदर। एक कुर्द फैमिली थी जो गई। मैं जब ये मिसाल दे रहा हूँ तो आपको याद आएगी बात। तो उस फैमिली के 2 बच्चे और माँ कश्ती डूबने की वजह से मर गए, और वो खबरों में बड़ी दफ़ा बड़े दिन दिखाते रहे कि एक पुलिस वाला एक बच्चे को सैल पे उठा रहा है, शायद आप लोगों को याद हो। और उन दोनों बच्चों की माँ की लाशें वापस शाम में भेजी गई, और वो आदमी जो बाप था बच्चों का, वो जर्मनी चला गया। लेकिन उसने क्या कहा, मैं वापस जाता हूँ शाम में जहाँ मेरे बच्चों की कब्रें हैं। उसने, बाप ने वहाँ दहशत के बारे में, जंग के बारे में, खौफ के बारे में, मौत के बारे में, भूख के बारे में नहीं सोचा। इसकी बिल्कुल नहीं उसने परवाह की। वो कहने लगा, जहाँ मेरे बच्चों की कब्रें हैं मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ये है बाप, ये बाप की मोहब्बत है, ये ज़मीनी बाप की अज़मत है। कलाम में लिखा है, याइर जो इबादत खाने का सरदार था, उसकी बेटी करीबल मर्ग थी, 12 साल की थी। यीशु के कदमों में आकर गिरा। लूका 8वें बाब की 41 आयत से 44वें आयत में लिखा हुआ है। और आकर मिन्नत करने लगा, यीशु के कदमों में गिरकर मिन्नत करने लगा, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले। वो मरने के करीब है। वो उस वक्त भूल गया, मैं इबादत खाने का सरदार हूं। मेरे दूसरे इस्राएली लोग यहूदी क्या कहेंगे, या मैं इबादत खाने का सरदार हूं। वो अपनी बेटी की मौत को, बीमारी को, हालत को देखकर खुदाम के सामने आजिज हो गया, मिन्नत करने लगा उसकी ज़िंदगी के लिए। मेरी बेटी मरने को है, मेरे साथ मेरे घर चल। इसी तरह लूका 9वें बाब की 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक एक शख्स का जिक्र है। बाप अपने इकलौते बेटे को लेकर खुदाम यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरा इकलौता बेटा है, उसे बचा ले। उसे एक बुरी रूह तंग करती है और उसे कुचल देती है और बुरी तरह उसे मारती है और कफ भर लाता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरा इकलौता बेटा है, उसे बचा ले। ये बाप है। बेटे की तकलीफ
नहीं बर्दाश्त कर सकता, बेटे का दुख नहीं देख सकता, यीशु के पास आया, मेरे बेटे को बचा दे। ये ज़मीनी बाप है। आखिर में मुशर्रफ बेटा, लूका 15वें बाब की 20 आयत से 23 आयत तक लिखा है, जब मुशर्रफ अपने हिस्से का माल लेकर चला गया दूर दराज, और वहाँ उसने अपना सारा हिस्सा, सारी दौलत बुरे कामों में ख़त्म कर दी, और फिर इतनी उसकी खस्ता हालत होगी कि वो सूअर चराने लगा। जो कुछ वो खाते थे वही वो खाता था। तो कलाम में लिखा है, एक दिन वो होश में आया, कहने लगा मैं अपने बाप के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ मुझे मुआफ़ कर, मैं आसमान का ज़मीन का गुनहगार हूँ, मुझे मुआफ़ करके अपने मज़दूरों की तरह रख ले। और कलाम में क्या लिखा है, जब वो अपने घर गया, बाप ने दूर से देखा, उसको बेटे पर तरस आया। बेटा अपनी खताओं की माफ़ी मांग रहा है, बाप ने उसे गले लगाया, चूमा, उससे प्यार किया और अच्छा लिबास उसे पहनाया, अंगूठी पहनाई, पाँव में जूती पहनाई, एक बड़ी ज़ियाफ़त की। यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा कह रहा है, ए बाप मुझे मुआफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तो बाप ने उसको गले लगाया है, चूमा है, प्यार किया है, एक लफ्ज़ नहीं बोला बाप। उसको ये नहीं कहा अब तू क्या लेने आया है, तू अपना हिस्सा जो ले गया था वो ख़त्म कर दिया है, तूने अपने ख़ानदान को बेइज्जत बदनाम दुनिया में कर दिया है, अब क्यों आया है। बाप की मोहब्बत ने एक लफ्ज़ भी उसको नहीं कहा, कुछ नहीं उसके बारे में बोला, बल्कि उसको गले लगाया है, उसको चूमा है। ये बाप की मोहब्बत है कि वो कैसा भी उसका बच्चा हो फिर भी उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, प्यार करता है। अच्छा लिबास दिया, मतलब उसने उसको अपने ख़ानदान के म्यार के मुताबिक फिर से उसकी हालत को बना दिया। अंगूठी बनाई, फिर से उसे अपना ख़ानदानी इख्तियार बख्श दिया, जो उससे पहले घर में एक बेटे का उसके पास इख्तियार था। उस अंगूठी इख्तियार को शो कर रही है, इख्तियार की अलामत है। उसको इसलिए फिर से घर का इख्तियार दे दिया। जूती पहनाई, जूती सुलह की अलामत है, फिर बाप ने उसके साथ सुलह की और एक बड़ी ज़ियाफ़त की, खुशी की। मेरा बेटा मर गया था, ज़िंदा हो गया है, फिर मेरे पास वापस आ गया है। ये ज़मीनी बाप है जो अपने बच्चों को उनकी ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों को मुआफ़ करता है और फिर उसे गले लगाता, चूमता, प्यार करता, अच्छा लिबास देता, फिर उसे अंगूठी पहनाता, फिर वही इख्तियार, वही सुलह करता है उसके साथ। यही बात हमारा आसमानी बाप भी करता है। कलाम में लिखा है, वो शफ़क़त करना पसंद करता है, वो अपनी शफ़क़त से हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है। ज़मीनी बाप भी हमें प्यार करता, अपने गले लगाता है। किसी ने कहा, मुझको छाँव में रखा और खुद चलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। हमारा आसमानी बाप फरिश्ते की मानंद होता है, जो हमें प्यार करता, गले लगाता, चूमता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं हर एक शख्स अपने आसमानी बाप के लिए और ज़मीनी बाप के लिए, दोनों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप की मोहब्बत के लिए और ज़मीनी बाप की मोहब्बत के लिए। आज इस फादर डे के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आइए सर को झुकाएं, दुआ मांगे।